completely up to you. If you don't have right now, you can make on any base. So hi everybody, I am here, Indu Sharma from Dehradun. So we should wait for some time. Hi Kalpana ji. Hi Kalpana. Hello. How are you? ये लॉकडाउन पीरियड है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं. सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. बी होम, बी सेफ. हाय आरती. हेलो. हाय. this for that now if you don't have, you can आप लोग देख सकते हो ना मेरे को? on the this is a MDF. Yes. We should wait for some time. Check out our materials. We will require a bottle like this, any empty bottle, Fevicryl, Mod Podge. Is it clear? Yes. If you have this, you may take it. Otherwise, you may use Fevicol too. बस फेविकोल वाले आर्टिकल्स को थोड़ा सा आपने केयरफुली यूज़ करना है. Mod Podge is a very durable material. And then we have to have some tissues. टिश्यू पेपर होने चाहिए हमारे पास. Colors, some colors of your choice. For base, white color, acrylic paints. These all are acrylic paints. Fevicryl molded. If you want to do some embellishment over it, then you have to use this. Brushes, Mod Podge लगाने के लिए, और उसके ऊपर हमें उसको अच्छे से प्रेस करने के लिए, टिश्यू पेपर को कट करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होगा. So we will need some brushes, butter paper to press the tissue paper while doing decoupage. This word is decoupage. Decoupage. So decoupage is a French art. Just to decorate something, we have to, if we want to decorate something, we paste some beautiful pictures or patches of papers, and then later merging it with some painting techniques. So this is called decoupage. Decoupage. So decoupage, it can be used on various surfaces like glass, wood, metal, and some ceramic tiles. You can use it on them also. Different types of papers
which we use on articles to decorate, to do this decoupage art. These are tissue papers, different tissue papers. There are beautiful tissue papers in the market. You can buy them from craft store, or you can use rice paper or some pattern papers too. So today we will do the decoupage on a glass bottle. Hello Santosh Sharma ji, thanks for joining us. So let's start. Okay, we will start it. First of all, I will spread a sheet on my table, any plastic sheet, just to अपने टेबल को आप गंदा नहीं होने दें. Newspaper, you can have newspaper too. Okay. Can you see it? Hello Savita. Hello. After a long time we are here together. That's good. So first of all we have to clean the bottle. It should be cleaned and dry. Okay. So let's start. Before starting it, we have to first of all I have to do the first coat of gesso. Just wait for a while. We will do a coat of gesso on it. This is the base coat. For this you can use sponge too. For the second coat I will use sponge. We have to give the basic coat so that the tissue stays on it for a longer time. Hi Richa. So all of you, are you ready with your material? Then start doing with me. आप लोग भी मेरे साथ साथ ही करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. And then post the pics of your material also, your article, whatever you make, post the pic of this article. Let it be dried for a second, for a few seconds. These days it's too hot, so it will be dry. It will dry
early. Hi Tanuja. Hello Manju Didi. Hi. Okay. So we have to wait for a while. I will keep it aside. Please give me a cloth. इधर एक hanky है. Yeah. I'll show you some of my bottles. One is this one. How do you like this bottle? Isn't it beautiful? One is this one. The other one is this one. थोड़ा सा एडवांस है इसमें, थोड़ा आपको अगर ये टेक्निक्स आती हैं नीचे पेंटिंग टेक्निक्स, देन यू कैन डू इट. हाय दीप्ति, थैंक यू. I have a sponge piece. Let it be dry. I can use this hard heat gun too. You can use your dryer. Thank you Tanuja. Can you see me live? Okay. The bottles. Swati Gupta, hi. You want these? You want to see them? Hi Vandana. Okay. I can't see on my phone. There are some liners in the last drawer. सबसे नीचे वाले drawer में ना. Okay. So this is dry now. Okay. I have to close this.
dry now. Okay. Now we have to do the second coat. This. Thank you. We will use the acrylic white color, Fevicryl acrylic white, for the second coat. Now we have to do the second coat. Always close the lid of the bottles of your colors very tightly after use. इसमें निकालिएगा, इसी में है ना, देखो कहाँ देखा आपने, मेरे को नहीं दिख रहा. I want a cloth from there. Okay. By using this sponge, you will get an even texture. Dab the color. वाइट कलर इसलिए ज़रूरी है, अगर हम कोई भी टिश्यू इसमें लगाते हैं तो अगर वाइट बेस नहीं होगा तो टिश्यू के कलर्स आपको ठीक से दिखाई नहीं देंगे. सो यू हैव टू हैव अ white base. इसको हटा दीजिएगा यहाँ से. थोड़ा लाइट रुक रही है. Thank you. अच्छा, that's why. So this is done. Cover it properly. अगर फर्स्ट लेयर ठीक से ड्राई नहीं होगी ना तो वो कलर उठ के आएगा. अभी मैंने थोड़ा जल्दी किया तो कहीं कहीं से कलर उठ के आ रहा है. सो बी केयरफुल. पहले अपनी फर्स्ट लेयर को अच्छे से ड्राई होने दीजिए, देन डू द सेकेंड लेयर. ओके, सो दिस इज डन. अगेन वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. आई विल यूज माई हीट गन. लाइट ये नहीं हो गया अब. लाइट हैज़ गॉन. चलिए, सो वी हैव टू वेट फॉर इट. थोड़ी देर इसको रखते हैं.
चलिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा एक ये बॉटल है, दिस इज़ वाई बॉटल। आजकल हमारा बहुत कुछ सामान आ रहा है, ये डिस्पेंसर्स हमारे बहुत सारे होंगे घर में तो इनको हम डेकोरेट करते हैं, इनको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक बेदिंग जेल है, जैसे पतंजलि का है वो, तो उसको हमें हैंग करना पड़ता है, तो मुझे लगता है उसको ऐसे पंप में अगर होगा ना, उसको यूज़ करना ईजी होगा। तो आई विल डेकोरेट दिस बॉटल फॉर यूजिंग माई बेदिंग जेल। ओके, तो चलिए इसको हम डेकोरेट करते हैं। तब तक इसमें कुछ भी नहीं करना, वाइट बेस तो है ही। तो चलिए हम कोई सा एक टिश्यू लेते हैं, चलिए ये टिश्यू ले लेते हैं। तो तब तक मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि कैसे होगा, आपने टिश्यू को कैसे यूज़ करना है। ये टिश्यूज़ हैं, इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है आप देख लीजिए, आपको कितना उसके लिए चाहिए होगा पेपर। आपके ये जो मेन पैटर्न है वो सेंटर में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लेंगे। ब्रश से पानी लगाइए और आप इसको देख लीजिए कि ये आपका सेंटर में आता है, तो आपको इतना पोर्शन चाहिए होगा। साइड साइड में इसमें ये ब्रश से पानी लगाते जाइए, तो जितना आपको स्पेस चाहिए उतना आप कट करके निकाल लेंगे वहाँ से। थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे हम, पीछे तक चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसको कैंची से भी हम कट कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट लुक गुड, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग इसको कैंची से कट नहीं करेंगे। ये जहाँ जहाँ हमने कलर लगाया है, वाटर लगाया है, ये पूरा देखिए निशान आ गया, बस यहीं से हम इसको अलग करते जाएंगे। एक थंब, दोनों थम्स के हेल्प से, बाय यूजिंग आवर बोथ द थम्स वी विल कट इट, टेक इट आउट। चलिए, ये जो हमारा मोटिफ है ये इस बोतल पे इतना ही चाहिए हमें। थोड़ा सा इसको हम इसके ईयर को ले लेंगे, अब आपका काम करते करते आप देख रहे होंगे इसकी लेयर्स अलग हो रही हैं। these tissues are 2 ply और 3 ply tissue, yes wow, I think there should be one more layer। कुछ टिश्यूज 3 प्लाई होते हैं, कुछ 2 प्लाई होते हैं। लेट मी चेक। थोड़ा पानी लगाइए, थोड़ा पानी लगा के टू प्लाई, लेट मी चेक, क्योंकि अगर इसका एक प्लाई और है तो इसको हमें हटाना ही चाहिए। एक और तरीका है, थोड़ा सा मॉड पॉज हाथ में लगाएं या फेविकोल, हाँ ये देखिए एक और लेयर थी जो कि अब वो अलग हो गई है।
we have to separate these layers. Okay, now the tissue is ready. Apply some Mod Podge, a thin layer of Mod Podge. लाइट आ गई है. I will apply a thin layer of Mod Podge. पूरे में एक सार आना चाहिए. अगर Mod Podge ज़्यादा होगा then there will be air bubbles और wrinkles भी आएंगे. तो कम नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. Even layer. Okay, this is done. Yes. इसके लिए अब हम दिस इज बटर पेपर, इसको लीजिए और इसको रख कर इसको अच्छी तरह से आप प्रेस कीजिए so that it will adhere properly. Yes. Now जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ भी हम लगाएंगे Mod Podge. इसे भी हम कवर करते जाएंगे. बी केयरफुल. एजेस पे अच्छी तरह लगाना है. दिस साइड ये जो जगह रह गई है like this. If you want आप पीछे भी लगा सकते हो इसका. बैक पोर्शन में भी आप चाहो तो लगा दो. इसी में से हम निकाल लेंगे कुछ और. सेम भी आप कर सकते हो बैक साइड में भी. इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए.
वंस अगेन आपने फिर निकाला इसको, कीप इट असाइड. नो, apply the Mod Podge glue. So this is all set. This is the main purpose of Decopatch, कि आपने किसी भी वेस्ट मटेरियल को बड़े ब्यूटीफुल एंड यूजेबल बना दिया. आप इसको यूज़ कर सकते हैं. हाउ डू यू लाइक दिस? अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको हम ड्राई होने देंगे अच्छी तरह से, फिर इसके ऊपर फिनिशिंग टचेस होंगे. ओके, फॉर द टाइम बीइंग आई विल चेक दिस बॉटल. थोड़ा अब इसको हम हीट कर सकते हैं, लाइट आ गई है. कोई और मेरे साथ कर रहा है? आप भी बनाइए, फिर शो कीजिए. आप लोग को समझ आ रहा है? Okay, now this is dry. Okay, for this I will use another tissue. अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए, नहीं तो बार बार आपके हाथों में लगेगा. ओके, इधर एक टॉवल होगा कोई. दैट येलो क्लॉथ, गिव मी दैट येलो क्लॉथ प्लीज. No problem.
I want some wet cloth, Thank you. Okay. चलिए, इसके लिए हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं. ओके, these birds are beautiful, I think. ओके, सो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा. ओके, once again I will take some water and बहुत ध्यान से इसके साथ साथ लेंगे. Okay, now we will separate this. Once again the same procedure, दोनों थंब से हम इनको धीरे धीरे अलग करेंगे. अगर इसको सीजर से कट करेंगे तो ये मर्ज नहीं होगा ठीक से, अलग सा दिखाई देगा. सो जस्ट टू मेक इट नेचुरल we will use the brush and water method, not the scissor method. इसकी छोटी सी ट्विक को भी हम ले लेंगे. किनारे से भी ऐसे थोड़ा थोड़ा कट कर देना चाहिए. सबको अच्छे से समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? थैंक यू हर्षा, थैंक्स अ लॉट. हम यहाँ फिर से मिले. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो मेन जो मोटिव है जो आप लगाना चाह रहे हो इसमें वो ख़राब ना हो. इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड. ओके, नाउ दिस इज़ डन. यस, सो नाउ अगेन वी हैव टू टेक आउट द लेयर्स. ये जो हम पानी लगाते हैं ना उससे ये लेयर्स भी आराम से अलग हो जाती हैं, अदरवाइज इन्हें ढूंढना पड़ता है. तो ये तो हमारी दोनों लेयर्स एक साथ निकल गई. दैट्स गुड. चलो, ओके.
सो नाउ आपको अपने मेन पोर्शन से शुरू करना होगा। इसको आप इधर साइड में कर लें। वंस अगेन ये आपने मॉड पर लगाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा आप पेस्ट करते जाइए, इसको हल्का सा स्ट्रेच करके, लाइक दिस, थोड़ा सा स्ट्रेच करके। एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपको बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती है तो पूरा एक पेंटिंग इफेक्ट आ जाता है इसके ऊपर। वंस अगेन आई विल यूज़ माई पेपर, बटर पेपर। आप कोई प्लास्टिक शीट भी ले सकते हो, अदरवाइज ये आपका पेपर उठ के आएगा। चलिए अब इधर लगाते हैं आगे, जहाँ छूट गया वहाँ पे भी लगा दीजिए। ओ सुनिए, एक ब्रश और दीजिएगा, इसमें तो कलर लग गया। चलिए तब तक मैं इससे लगाती हूँ। फ्लैट ब्रश दिस वन, थैंक यू। वो भी रख दीजिए। एक ड्राई ब्रश से भी आप इसको फ्लैट कर सकते हो, धीरे धीरे प्रेस करते हुए। बहुत ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना है। रिंकल्स नहीं आने चाहिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट रिंकल्स। ओके, नाउ दिस साइड। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पतली लेयर लगानी है आपने मॉड पॉज की। ये ड्राई ब्रश से आप इसको फ्लैट कर दें। And this is done. सारे एजेस पे मॉड पॉज अच्छी तरह लगना चाहिए, कहीं से भी एजेस खुलने नहीं चाहिए। बी केयरफुल अबाउट द एजेस। इसको अभी ड्राई होने देते हैं, तब तक हम इसके ऊपर सेकंड कोट करते हैं, फाइनल कोट। इसके ऊपर कैसे लग गया कलर? हाँ, इसको एक बार करना ही पड़ेगा, ये ना रखा गया जम जाएगा फिर ये। मॉड पॉज लगाने के लिए आप जो भी ब्रश यूज़ करें बिल्कुल साफ़ होना चाहिए।
कलर नहीं होना चाहिए। ओके, आई एम यूजिंग दिस क्लीन ब्रश। ये ड्राई हो गया है। चलिए इसके ऊपर मैं कर देती हूँ मॉड पॉज का सेकंड कोट। आपने देखा इतना थोड़ा सा मॉड पॉज मैंने निकाला था, उससे दोनों बॉटल्स में काफ़ी काम हो गया है। थोड़ा सा और निकालते हैं। अब इसके ऊपर हमने इसका फाइनल कोट करना है। हल्का हल्का प्रेस करते हुए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो अभी भी निकल सकता है ये। सो बी केयरफुल। हटा ही दे। यस, कहीं कोई एयर बबल नहीं रहना चाहिए। आप प्रेस करो, अगर कहीं होगा तो अभी भी निकल जाएगा। These are very thin napkins, so this is the advantage. अभी तक इसके ऊपर कोई शाइन नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर मॉड पॉज नहीं था। अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं। You should apply at least 2 layers of Mod Podge on the final product just to secure it. फिर पानी में भी ख़राब नहीं होगा। Hi Priya, thank you. और आप लोग के बच्चे भी देख रहे हैं कोई घर में? बच्चों को जरूर बोलिएगा वो भी करें। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। यू कैन नाउ सी द शाइन ऑन इट। लेट इट स्टैंड फॉर ड्राइंग। तो मेरे वाइट कलर के ऊपर मैं थोड़ा पानी डाल दूँ, सूख ही जाएगा वो तो। ओके, नाउ लेट मी चेक दिस। दिस इज़ ड्राइड। अभी इस साइड में भी अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज इसको हम वैसे भी कुछ टेक्सचर दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ। आई विल शो यू समथिंग other than the decoupage on this side too. Okay, now these are the birds and the tree, then the background should be something light blue. Okay, so I will make some light blue color.
एवरी टाइम आफ्टर यूजिंग द ब्रश वॉश इट केयरफुली। ब्रश को जरूर साफ करके रखें, नहीं तो मॉड पॉज से सारा चिपक जाएगा। यू विल स्पॉइल योर ब्रश। ओके, we have to make a sky blue color. मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कुछ पेंटिंग करते हुए गाना भी गाते रहिए। कहीं कहीं थोड़ा डार्क, कहीं थोड़ा लाइट। हाय दीनू, थैंक्स फॉर कमिंग। कल आप सब मेरे को अपना अपना जो भी आप आर्टिकल बनाने वाले हो मुझे दिखाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आप मेरे से कुछ और भी सीखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके
क्रिएट विद इंदू के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप देखो उसे एंड देन आस्क मी टू गाइड यू, मैं ज़रूर गाइड करूँगी आपको। जहाँ पे थोड़ा नैरो है वहाँ पे आप ब्रश से कर सकते हो। छोटी जगह पर आप छोटे ब्रश से कर दीजिए। और भी छोटी जगह और छोटा ब्रश ले लीजिए और पतला ब्रश ले लीजिए। ओके, आपको पूरी पेंटिंग तो नहीं करनी पड़ी, पेंटिंग तो ऑलमोस्ट है यहाँ पर, आपने थोड़ा उसको एनहेंस करना है ताकि आपकी पूरी बॉटल आपके हाथ से ही बनी हुई दिखेगी। दिस इज़ योर पेंटिंग। ओके, सो दिस इज़ एन एरा ऑफ स्मार्ट वर्किंग। आपने फटाफट अपनी एक पेंटिंग तैयार कर ली और एक अपनी ओल्ड बॉटल जो ऐसे ही कहीं जाने वाली थी कबाड़ी के पास, आपने उसको एक अच्छा सा ब्यूटिफिकेशन कर दिया उसको। अब आपका एक ब्यूटीफुल शो पीस बन गया है। आप इसको अपने ड्राइंग रूम में सजाइए और सबसे वाहवाही लीजिए। लाइक दिस, इनके बीच बीच में छोटे छोटे टचेस जहाँ देना चाहते हैं दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी रहेगा तो अच्छा ही है, नो प्रॉब्लम। अभी इधर भी है, यस दिस साइड। थैंक यू दीप्ति। ओके, इसको थोड़ा सा फाइन, इसके नेक पर ज़रा फाइन कर दीजिए। नाउ इट्स फाइनल। और थोड़ा सा हम इसके बॉटम में भी करेंगे। ऐसे इसके बॉटम को भी आप कर दीजिए। काफ़ी हाथ गंदे हुए हैं मेरे, नो प्रॉब्लम। एक मेरी और बॉटल थी, ये मेरी रेजिन की बॉटल खाली हुई थी, मैंने उसको भी डेकोरेट किया। चलिए, थोड़ा सा ब्लू कलर बचा है, इसका लिड अभी बाकी है तो हम उसमें भी कुछ कर देते हैं।
You all may go to my page Create with Indu on Facebook, and there are so many things. I have some videos too, so you may get benefited from that also. चलिए, हमने इसको भी पूरा कर दिया। इसमें कुछ स्टेंसिल्स आते हैं, बल्कि ये तो मैंने खुद ही बना लिया था। आप कोई हार्ड शीट पे कट करके ऐसे ब्रिक शेप कट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टेंसिल का पेस्ट कर दो। स्टेंसिल से आप एक इम्प्रेशन दे सकते हो। सो दिस बॉटल इज़ रेडी टू यूज़। आप इसको बाथरूम में रखिए, इसके अंदर आपने जो भी रखना है उसको डालिए, और जब इसको आप यूज़ करेंगे तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ दिस, कहाँ से लिया। ये हमारे 3D लाइनर्स होते हैं। 3D लाइनर्स हैं, ये 3D लाइनर्स हैं। आप इनसे भी इनके ऊपर किसी किसी चीज़ के आसपास आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें गोल्डन 3D लाइनर से आउटलाइन की हुई है, तो उससे बड़ा खूबसूरत लगता है। बीच बीच में कहीं कहीं आप आउटलाइन कर दीजिए। तो ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही खूबसूरत एक बॉटल हो जाएगी। कितनी सिंपल बॉटल थी। और क्या, हाउ डू यू लाइक दिस बॉटल? ये जो डोरी है इसको मैंने यहाँ लगाया हुआ है। ये इसमें ये डोरी लगाई हुई है, तो इसको भी हम लगाते हैं। इसमें बता सकती हूँ, जैसे मैं इसमें एक आप ये भी एडिशनल कर सकते हैं कि आप इसको, ये मेरी हॉट ग्लू गन है, इसमें मैंने थोड़ा सा लगाया। चलिए, और इसका एक सिरा इसमें हमने लगाया। यस, अब ये रुका रहेगा और इसको आप लगाते जाइए, फोल्ड करते जाइए लाइक दिस। सॉरी, ये आउट ऑफ फ्रेम हो गया। तो ये आप इसको इस तरह से इसको लपेटते जाइए, तो ये बड़ा सुंदर लगता है। तो
इस तरह से आप इसको टाइटली लगाते जाइए। अब कहीं बीच बीच में और लगा दीजिए हॉट ग्लू ताकि ये निकले नहीं। तो इसको जहाँ तक लपेटना चाहे, पूरे नेक में लपेटना है, पूरे नेक में आप लगाते जाइए। जो जूट रोप आती है जो छोटी वाली, मीन्स नैरो होती है, ये जूट कॉर्ड, ज़रूरी नहीं कि आप नीचे तक लगाएं, आपने इतना भी लगा दिया, दैट्स इनफ। और इसको लास्ट में कट करके और फिर इसको इसी से ही बी केयरफुल। तो ये बॉटल एक स्टाइल बन गया। इसमें आप इसी तरह से नीचे भी लगा सकते हैं, इसको यहाँ नीचे भी आ सकती है ये। अब इसमें हमने अभी एक फाइनल कोट और देना है। फाइनल कोट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका सारा मोटिव बाहर निकल जाएगा और पूरी बॉटल के ऊपर भी एक शाइन आएगी। ऊपर तक कीजिएगा। So, do you like it? आप यहाँ पे चाहते हैं थोड़ा, अगर आपके अंदर जितना भी आर्टिस्टिक जो भी आपको कुछ ध्यान आता है कि और कुछ बन जाना चाहिए, यहाँ थोड़े से आप इसके क्लाउड्स बना सकते हैं। इसमें एक डोरी बांधकर उसमें 2 मोती लटका दीजिए, जैसे मैंने इसमें लटकाए हुए हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं डेंगल करते हुए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गोल्डन का टच दे दिया। देयर आर n ways टू डेकोरेट अ थिंग। तो इसके ऊपर आपकी एक पिक्चर आ गई है, ये डेकोरेट हो चुकी है, बट टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ दिस पिक्चर आप कुछ और कर सकते हैं। थोड़े गोल्ड आउटलाइन दे सकते हैं, कुछ एम्बेलिशमेंट लगा सकते हैं और क्लाउड्स वगैरह बना सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। सो हाउ डू यू लाइक दिस प्रोजेक्ट, दिस सेशन? प्लीज़ डू टेल मी, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये सब। और आप अपने इसके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो ना समझ में आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको क्लियर करूँगी। और आप मेरे पेज पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्रिएट विद इंदू ऑन फेसबुक। तो ज़रूर देखिएगा, मेरा चैनल भी है क्रिएट विद इंदू देहरादून के नाम से, तो आप लोग ज़रूर देखिए उसको भी, गो थ्रू दैट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो कमेंट सेक्शन में सब अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे आपने एक अपनी सिंपल बॉटल को डेकोरेट करके, एक ऐसे सिंपल बॉटल थी और उसको आपने उसको एक पेंटिंग बना दिया है सुंदर, एक असेट है, वैल्यूएबल असेट। कोई भी देखेगा तो आपको बोलेगा वाओ बड़ा अच्छा आपने तो इसका यूज़ किया। हम लोग तो ऐसे ही बॉटल्स को इनको फेंक देते हैं, है ना। तो ज़रूर आप लोग कीजिए इसको और फिर मेरे को कल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वैसे भी अपनी जो भी आप आर्टिकल बनाते हो उसकी पिक्स ज़रूर पोस्ट कीजिएगा मेरे फ़ोन नंबर पर। आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए 9897913471। मैं कमेंट सेक्शन में दे भी दूँगी अपना नंबर, तो आप मेरे से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको सेशन कैसा लगा, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। सो ओके, थैंक यू समीक्षा। हाँ, यू आर हेयर, दैट्स गुड। मनीषा अग्रवाल, वाओ, थैंक यू, थैंक्स टू यू। आप लोगों ने अच्छे से इस सेशन को देखा और ज़रूर इसको कीजिएगा, आप लोग घर में बनाइएगा। और जो लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका एक रिवीजन हो गया। जो नहीं बनाते हैं उन्होंने देखा, अपने बच्चों को बताइएगा, अपने भाई बहनों को बताइएगा, तो किसी को तो बेनिफिट होगा। एंड थैंक्स कलाकृति मैम, थैंक्स फेविक्रिल, आपने मेरे को एक्सपर्ट टीचर बनाया है। तो जो मैंने सीखा है मैं ज़रूर चाहूँगी सबके साथ शेयर करना, और मुझे मौका दीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। थैंक यू। शुड आई क्लोज द सेशन? I will show all these bottles like this. These are the bottles. Hi. Okay. Bye bye. See you once again in any other next session. Okay, thank you. Thanks Kavita. Bye bye. Okay.